Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. स्तुति हो। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर. So good to see you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ गवाहियाँ आप यहाँ पर सुनते हैं, I want to say this, that whatever testimonies you hear in this place, ये 100% प्रभु यीशु मसीह है, कोई इंसान नहीं. these are 100% done by Jesus, not by any man. Amen. इसीलिए सारा आदर, सारी महिमा उसी की है. So all the honor and all the glory belongs to Him alone. Amen. तो अपने हाथों को उठाओ Lift up your hands wherever you are. और जो बेस्ट प्रेज आप उसको दे सकते हो, And the best praise that you can offer to उसको Him, बेस्ट वो प्रेज दो आज. give Him your best praise today. Come on. He's worthy of all our praises and honor. अपने मुंह को खोलो अपने शब्दों में. In your own words, वो स्तुति, वो आराधना जो आपके अंतस्करण से, आपके दिल के अंदर से निकलती है, वो स्तुति आज उसको चढ़ाओ. give Him the praise that proceeds from the core of your being, from the depth of your heart. उसको आज बोलो, खुदा मैं तेरे घर में तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूँ. Tell Him, Lord, I have come to your house to hear your voice. मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरे उस जीवन के वचनों को सुन सकूं. Open my ears so that I can hear your words of life. तू तेरी आत्मा आज हम सब से बात करे. Let your spirit speak to each one of us today. हर एक बीमार आज चंगा होके जा रहा है यीशु के नाम में. Every sick person is being healed today in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति आज आजाद होकर जा रहा है यीशु के नाम में. Everyone in the bondage of the devil is being set free today in Jesus' name. वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके नाम को धन्य कहते हैं. वो धन्य 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 परमेश्वर है. We praise the name of the Lord Most High. We bless the name of the Lord. एक मिनट के लिए आप उसको बोले आज For a minute, speak to Him and tell कि Him, प्रभु आज का वचन मेरे लिए है. Lord, today's word is for me. बोलिए उसको. Come on, speak to Him. उसको बोलिए कि आज खुदावन तू मुझसे बात कर. Tell Him, Lord, speak to me today, Lord. हालेलुया. आप सब बैठ सकते हैं. You all can be seated. प्रेज गॉड. प्रभु की स्तुति हो. आमेन. क्या आप खुश हैं आज आप उसके घर में हैं? Are you happy that you are in His house today? हालेलुया. जिस खुदावंद यीशु की हम आराधना करते हैं वो मरा नहीं, वो जीवित है. The Lord Jesus whom we worship is not dead, He is alive. और हर संडे को हम उसको अपने बीच में बड़े बड़े काम करते हुए देखते हैं. And we see Him do mighty wonders in our midst every Sunday. हम वो लोग नहीं जो ईसाई धर्म में हैं. We are not those people who are in a religion called Christianity. और अगर आपको कोई धर्म ईसाई बनाने की कोशिश करे तो भाग जाना वहां से. And if someone tries to convert you to Christianity, run away. आमेन.
हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं कि कुछ पैसों से खरीदा जा सके। Our faith is not so cheap that it can be bought with some money. आमेन। आप सबसे कीमती चीज से खरीदे गए हैं जिसका कोई मोल नहीं। You have been bought with the most precious thing there is nothing that can pay to buy it. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर उस अविनाशी परमेश्वर के बीच से हुआ है। और तुम जो मोल लिए गए हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मोल लिए गए। The word of God tells us that you're not bought with perishable gold or silver, but by imperishable, incorruptible word of God, and you're bought by the blood of the Lord Jesus. Amen. So जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये वो जगह नहीं जहाँ ईसाई लोग मिलते हैं, ये वो जगह है जहाँ उसके बेटे और बेटियाँ मिलते हैं। Those who have come here for the first time, I want to tell you, this is not the place where people in the religion of Christianity they meet. This is the place where the sons and daughters of God meet. यीशु मसीह किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। Jesus did not come to convert anyone to Christianity. Amen. वो हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया है। He came to make us sons and daughters of the Most High God. Hallelujah. So मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वचन के लिए। I am very excited for today's word. Amen. क्या हम लोग कुछ सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से? Are we learning something from God's word? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे कीमती चीज जो अगर कोई हमारे जीवन में है वो है उसका वचन। The most precious thing in our life is His word. लोग आपसे आपकी नौकरी ले सकते हैं, आपकी कार ले सकते हैं, आपका घर ले सकते हैं, मगर जो उसका वचन आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ है वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। People can take your car, your house, your job away, but the word that is hidden in your heart, nobody can steal it from you. Amen. और इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि जो ये वचन है इसके बीज आपके हृदय में प्रवेश न करें। And this is why the devil tries his best that the seed of this word does not go into your heart. हाँ, उसको कोई परवाह नहीं अगर आप एक कलीसिया आते हैं, नाचते हैं जब आराधना होती है, मगर वचन अगर पता है, अगर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर वचन चला गया तो वो व्यक्ति शैतान के चंगुल से आजाद हो गया। He does not bother if someone comes to church and dances and worship, but he knows if the word goes into someone's heart, that person is free from the devil's bondage. So इसीलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आपको प्रार्थना में रहना है, आपको पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि जो वचन आज भेजा जाता है वो पथरीली भूमि में ना गिरे, मगर एक अच्छी भूमि पे उसके बीज गिरे। So your biggest responsibility today is that you would pray, Holy Spirit, let not the word fall on hard ground but on a good ground. Okay, आज तीसरा भाग है। This is the third part of the series. और मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि परमेश्वर के वचन में इतना कुछ है, हम 100 सीरीज 200 सीरीज ले जा सकते हैं हीलिंग की। When I study, I find out there's so much in God's word, we can take it to 100, 200 parts of the series. Okay. So आज जो थर्ड पार्ट है वो है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, sickness is a warfare. The third part that I want to teach you today is चंगाई एक युद्ध है, and how to fight for your healing. और कैसे लड़ना चाहिए अपनी चंगाई के लिए। Amen. Amen. हमें लड़ना सीखना होगा। We have to learn to fight. कई मसीह हैं जो भीख मांगने में बहुत टाइम से मांग रहे हैं, उन्हें परफेक्ट हो गए भीख मांग मांग के, उनको पता है गिड़गिड़ाना कैसे है, मगर लड़ना कैसे है उस चीज के लिए जो उनकी है ये नहीं जानते। There are many believers who have perfected the art of begging. They know how to beg before God, but many of them don't understand, don't know how to fight for what is already theirs. मैं शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो ऑलरेडी आती है उन्हें। I am not talking about physical fight, they know that. मैं आत्मिक लड़ाई की बात कर I am रहा हूँ। talking about a spiritual fight. ओके,
क्योंकि शारीरिक तो लड़ ही रहे हैं लोग, कोई ना कोई किसी से, कोई अपने बॉस से, कोई अपनी सास से। People are already fighting in the physical, someone with their boss, someone with their mother-in-law. बस कुछ नहीं करना, वो लड़ाई जो शारीरिक लड़ रहे हो ना, उसको आत्मा में ले जाओ शैतान के विरोध में, तो बहुत जय देखने लग जाओगे। All you have to do is the fight that you are fighting in the physical, take that in the spiritual and start fighting with the devil. You will see much. हाँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे जो विरोधी हैं ना, कई लोग सोचते हैं हमारे विरोधी हमारे रिश्तेदार हैं, कई सोचते हैं हमारे विरोधी मेरी सास है, मेरा बॉस है। नहीं, वो आपके विरोधी नहीं है। Many people think my boss is my enemy, my mother-in-law is my enemy. No, they're not. वो केवल जो असली विरोधी है उसके प्रभाव में आकर वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। They are only under the influence of the real enemy and they are doing whatever they're doing. मगर कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं। But no man is your enemy. आमीन। आपकी सास आपकी दुश्मन नहीं। Your mother-in-law is not your enemy. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया जब पतरस की सास को चंगा किया। Jesus proved it by healing Peter's mother-in-law. आमीन, हालेलुया। सो चलिए शुरू करें। तैयार हो आप? मैं बीज फेंकूंगा, आपको पकड़ लेना है। I will scatter seed, you have to catch it. जो सुस्त है उसके बगल से बीज निकलते जाएंगे। Those who are lazy, the seeds will pass them right through. जो चुस्त है वो पकड़ लेगा बीजों The को। quick will catch the seed. आइए एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम Let's pray. वचन। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Father God, we thank you. आप एक अच्छे पिता हैं। You are a good God. हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छा दान और वरदान आपकी ओर से होता है। Every good thing, every good gift comes from you. सत्य के आत्मा Spirit of truth. हमें सारे सत्य में ले जाओ। Lead us into all truth. हमें धर्म की बंधुआई से आजाद करके सत्य की ओर ले जाओ। Free us from the bondage of religion and lead us into all truth. हमें रीति रिवाज बंधनों से आजाद करके सत्य की ओर ले जाओ। Free us from rituals and lead us into truth. हमें कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए खुदावन, Lord, we do not want हमें your तेरा rituals. जीवित वचन चाहिए। We want your living word. हम तुझे जानना चाहते हैं We want to know you जैसा तू हमें जानता है। as you know us. हमारे कानों को खोल दे आज, Open our ears today. हमें अपने गूढ़ की बातें बता, Teach us your deep things. यीशु के नाम में, In Jesus' name. आमेन, Amen. आमेन, हालेलुया। आप बिलीव करते हो आज का वर्ड आपके लिए है? Do you believe today's word is for you? ओके, चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज आप जानते हैं, वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड। हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं। वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड। हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं। आप जानते हैं जिस दुनिया में हम हैं The world वो that we live बीमार है। is sick. मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not talking about 10-20%. एक स्टडी के अनुसार, मैं रिसेंटली एक स्टडी को पढ़ रहा था, उसके अनुसार 95% लोग इस पृथ्वी पे बीमार हैं। I was going through a study recently and according to that 95% people on the earth are sick. ओके, सो आप ये देख सकते हैं, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी एंड पॉपुलेशन हेल्थ मेट्रिक्स स्टेट्स दैट approximately 95% of the global population experienced health issues at some point during the year, with only 5% remaining completely free from health problems. So जो जनसंख्या निकाली गई इस अध्ययन के द्वारा, उसमें मालूम हुआ कि लगभग 95% लोग वर्ष के दौरान किसी ना किसी समस्या से बीमार हुए और केवल 5% लोग थे जो स्वास्थ्य की समस्या से पूरी तरह मुक्त रहे। क्यों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ? Why am I showing you this? कि आपको पता चले कि आपके आसपास क्या हो रहा है, So that you know what is happening around you. और अगर उस परमेश्वर की पूर्ण इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होती, And if the will of that God was being manifested on the earth, और अगर जैसे कई लोग बोलते हैं अरे उसकी मर्जी ना हो तो बीमारी नहीं आ सकती, and as many people say, oh, if it's not His will, sickness cannot come. तो अगर उसकी इच्छा से आज 95% लोग सताव में हैं, लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग एड्स से मर रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, बच्चे बीमारी में मर रहे हैं, तो फिर ही इज एन इविल क्रिएटर। Then if according to His will people are dying in cancer, children are dying, people are sick and suffering,
तो फिर वो एक बहुत ही दुष्ट सृष्टि करता है. फिर वो एक अच्छा परमेश्वर नहीं. Then he is not a good God. वो फिर उन शैतान बच्चों की तरह है जो एक मेंढक को पकड़ लेते हैं, उस पे पत्थर मारते हैं, या एक जानवर को पकड़ लेते हैं बेजुबान और उसको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं और उससे उनको मजा आता है. तो उस खुदा को सताओ दे दे के, अपने सृष्टि को सता के उसको मजा आता है फिर. Then he is like those evil kids who like to torment animals and shed their blood, and they take pleasure in that. He is like that God who wants to make his creation suffer and get pleasure out of it. क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर आप परमेश्वर की परिभाषा को नहीं जान सकते. Because you cannot look around what's happening and then define God according to it. यीशु मसीह आया प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर पिता कैसा है. Jesus came to manifest how the heavenly Father is. और उसने कहा कोई नहीं जानता उस स्वर्गीय पिता को, केवल उस पुत्र को जो उसके अंदर में से निकल के आया है. And he said no one knows the Father except the Son who came out of the bosom of the Father. Okay? So एक पहली बात जान लो, So know this. परिस्थितियां हमें नहीं बता सकती सत्य क्या है. Situations cannot tell us what is the truth. इसीलिए तो आज इतने लोग नास्तिक हैं. Which is why many people are atheists today. क्योंकि जब वो आसपास देखते हैं When they look around, तो उन्हें दिखता है. मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी राज्य में जाओ, जैसे सऊदी अरेबिया जाओ जहाँ पे राजा हैं, या दुबई जाओ, और वहाँ पे आप देखो लोग मर रहे हैं सड़क में, खाने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो वहां से आपको क्या पता लगता है राजा कैसा है उस जगह का? दुष्ट है. I told you, if you go to a kingdom where there are still kings like Saudi Arabia, and if you see people dying on the streets out of hunger, don't have amenities, you will say the king is an evil king. तो इससे हमें पता लगता है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी पे राज कर रहा है जो दुष्ट है. So that tells us that there is somebody who's ruling on this earth who is evil. कितने लोग मेरे साथ हैं? How many of you? आप समझ रहे हो इस बात को? You understand? परमेश्वर इस पृथ्वी पे अभी राज्य नहीं कर रहा है. God is not ruling on this earth right now. यीशु मसीह ने कहा the prince of this world is coming, talking about devil. यीशु ने कहा इस जगत का राजकुमार आ रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है. So कौन रूल कर रहा है इस पृथ्वी पे अभी? Who is ruling on the earth? क्योंकि जब आप आसपास देखो तो आपको पता लग जाएगा कोई विकेट बंदा है जिसको मजा आ रहा है सताओ देकर लोगों को. Because when you look around, you see there is someone who is evil, who is getting pleasure by tormenting people. क्योंकि पृथ्वी पर अभी उस खुदा की इच्छा पूरी नहीं हो रही. Because the will of that God is not being perfected on the earth right now. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है. This is why Jesus taught us to pray like this. Hallowed be thy name and let your will be done on earth as it is done in heaven. यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती. That means his will is not done on the earth. इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो. This is why the Lord said pray like this. स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है. In heaven his will is done 100%. इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में. Which is why there are no tears in heaven, no cancer, no child dying in sickness, because a good God, a good Father is ruling in heaven. मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती. But on the earth his will is not being done right now. शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पे. The devil is ruling on the earth. अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था. In the US it was legal to have slaves. ओके. और कैन यू सो आप देखेंगे इब्राहिम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. और the president of the country, he took out a new declaration, the emancipation proclamation. जिनको बोला गया है मुक्ति उद्घोषणा. मुक्ति उद्घोषणा.
और ये मुक्ति उद्घोषणा क्या थी? उन्होंने एक नियम निकाला, एक बिल निकाला लीगली कि आज के बाद जो हुआ था 1863 में, 1863 में, 63 सही है, 63 में, वहां पे अब्राहम लिंकन ने बोला आज के बाद अब कोई दास नहीं बना सकता, इलीगल है दास बनाना। He took out a bill in 1863 and said, after today, no one can have a slave. It's illegal to have slaves. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। A president who is the highest authority of the country made a legal decree. तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? What do you think would have happened after that? सो लीगली 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली। In 1863, slavery ended legally. मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में। But in reality, it took 100 years for all the slaves to be set free. क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है। Because many of those slaves did not even know that there is a declaration that has already set them free. Jesus said, "You shall know the truth, and truth will set you free." यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओके, 100 साल हो गए, It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं? इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में। People still had slaves working under them. They had slaves in their house, and they never wanted the truth to come to them, because the day the slave will know, he will come out. ऐसे ही शैतान चाहता है इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा। This is what the devil wants. Keep them in the religion of Christianity. Let them do their little rituals, because if they know the truth, they will come out. They'll be set free, and I'll not be able to bind them anymore. आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं? हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना। जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है, और यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। You hear testimonies every Sunday in this place how people, when they got to know their authority, they came out of cancers and sicknesses. Jesus said, when you will know the truth will set you free. Amen. तो इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितने सत्य को आप जानते हो। So that means you're only free to the extent to which you know the truth. उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो। Not as much as you beg or you fast, but as much as you know the truth. हालेलुया। तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। So your race is not begging and crying, but to know the truth. और सत्य क्या है? What is the यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है। John 17:17, Jesus said, sanctify us by your truth. Your word is truth. अपनी बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों में, Lift up your Bible in your hands. बोलो खुदा तेरा वचन सत्य है। Tell him, Lord, your word is the truth. Amen. Hallelujah. So legally 1863 में फ्री हो गए, Legally they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। But they remained slaves for 100 years because they did not know the truth. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे,
Because the day you will know the truth. जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए. The day you find out that 2000 years ago there was an emancipation proclamation where Jesus said, let all the captives be set free, let all those under the bondage of the devil be set free, let all those who are sick be healed. Amen. 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए. This was declared 2000 years ago for each one of us. जो धर्म का सार है आज धार्मिक शिक्षाओं का, The summary of all the religious teachings today वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले. is beg so that God might hear you. तो उनको लगता है जब मैं करूंगा तो परमेश्वर करेगा. So they think when I will do it then God will do it. सो कैसे हिलाऊं उसे, So how should I move him? कैसे हिलाऊं, How should I move him? क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं. What should I offer to him? How can I appease him? अरे भैया, जिसने करोड़ों सेब केले पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे, क्या दोगे उसे, क्या दे के मनाओगे उसे. The God who made all the trees, all the fruits, what will you offer him to appease him? हाँ, ये ऐसा है कहना कि महिंद्रा कंपनी वाला है, करोड़ों कारें बिकती हैं उसकी, और मैं बोलूं उसको मेरा काम करा दो, एक महिंद्रा की गाड़ी दूंगा तुम्हें. It's like telling the owner of Mahindra company who sells so many cars every year, telling him, get this done for me and I'll give you a Mahindra car. अरे जिसने एक एक सांस आपको दी है, अभी क्या चढ़ाओगे उसे. He who has given you every breath, what can you offer him? अपना जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे, जय में जीवन जियोगे. All of your effort which you are putting into doing religious works, if you pull it out and put it into knowing the truth, you will live a life of freedom, a life of victory. Amen. अरे करप्ट नहीं है वो ऊपर वाला, उसको ब्राइब नहीं दे सकते. He is not corrupt, you cannot bribe him. उसको मनाने की जरूरत नहीं है भैया. You don't need to appease him. Don't need to वो convince तो him. माना हुआ है 2000 साल से. He is already convinced since उसको 2000 क्या years. मना रहे हो. Why are you trying to अरे convince अपने him? दिल को मनाओ जो मानता नहीं है. Convince your heart that does not agree. हाँ, जैसे एक संत ने कहा, दिल है कि मानता नहीं. As a saint said, the heart doesn't agree. गॉस्पेल है भाई. जब खुदा का वचन अंदर घुस जाएगा ना, मैं बता रहा हूं, हर चीज में गॉस्पेल दिखाई देगी आपको. When the word of God goes in your heart, you will see the gospel everywhere. बाइबल कहती है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, और जो अपवित्र है उसके लिए सब अपवित्र है. Bible says, for the pure everything is pure, for the impure everything is impure. हाँ, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, कैब में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब वो कैब वाला गाने बजा रहा है, क्या करोगे, हिमालय में भाग जाओ या तो. So the religious people, when they're traveling and the cab guy is playing songs, either you run away from the city life and go. मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस यीशु से भरे हुए हो ना, वो गा रहा है लड़की के लिए, मगर जब आप गाना सुनोगे ना, तो आपका दिल कहेगा ये मेरा यीशु, ये मेरी बंदगी, मेरी दिल लगी मेरे यीशु से है, तो जो कुछ मेरे आसपास है ना, वो उसको अर्पित है. If you're filled with Jesus, you'll say all of my affection, all of my devotion belongs to him alone. उसको लड़की से प्यार है तो लड़की के लिए गा रहा है, मुझे यीशु से प्यार है तो मैं यीशु के लिए गा रहा हूं. He loves a girl, so he's singing for a girl. I love Jesus, so I'm singing for Jesus. ऐसा तो नहीं कर सकते ऑफिस में, हाय हाय हुई हुई हुई, हम बहुत पवित्र लोग हैं. You can't keep तो यार नौकरी छोड़ और हिमालय में चला जा. You can't keep going around saying I'm very holy, I'm very holy. They'll tell you to leave the job and go somewhere else. When you have been washed by the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल गए हो, बाहर की गंदगी आपकी धार्मिकता को नहीं अफेक्ट कर सकती. the external impurities cannot affect your righteousness within.
Amen. Hallelujah.